देखो यूपीएससी का मतलब ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक कभी बचपन से नहीं था। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे मैंने कभी सुना भी नहीं था यूपीएससी का अंटिल माय फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज। ऑनेस्टली इतना मेहनत करके आईआईटी में आए और फिर अब यहाँ पे जॉब नहीं ले रहे हैं और इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, लाइक इतने सारे लोगों में आपको 180 700 में आना है। प्रोसेस स्टार्ट्स मेकिंग योर पाथ इजी। सो अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आपका पाथ डिफ़िकल्टी होता जाता है। अरे यार इतना डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे? तो उसमें आप छोटा सा ब्रेक ले लो। छोटा सा ब्रेक मतलब जैसे आप एक मूवी को चले जाओ। Hello everyone, welcome back to another episode of Chill Mizas, and today we have Vikas with us. He is currently posted as Municipal Commissioner in Andhra Pradesh. तो बहुत बहुत स्वागत है विकास। थैंक यू अंकित। कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस ऑल गुड। सो हाउ इज वेदर देयर? ठंड कितनी है वहाँ पे? वेदर इज नॉर्मल। इट्स मोस्टली दिस एरिया इज अफेक्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट monsoon, so there was a rainy season here up till last week, so it's good enough. Chilly, not very chilly but good enough. हाँ, दिसंबर में देयर वाज अ साइक्लोन आल्सो और आपकी पोस्टिंग भी थी वहाँ पे। हाँ, साइक्लोन मिचोंग आया था, so it was not very high wind speed cyclone. It was decent, 80 to 90 kilometers per hour, but we handled it well, and there were no injuries reported. So yeah, there was normally cyclones will keep coming here every 2-3 years. So how was the experience working there on the ground? It's tough. It's really tough. You have to rehabilitate people. You have to find shelter homes. Already there are designated shelter homes because government has been taking strong measures since almost 20-25 years, and these designated shelter homes are well structured. Infrastructure is there, and teams will come from NDRF will come, SDRF will come. So we'll shift the people who are staying in the low-lying areas. Basically, in city you have low-lying areas near to river, near to sea areas, coastal areas. Those villages will shift them to the centers, the shelter homes, and we'll provide every facility like bed facility, food facility, drinking water, toilets, everything. Meanwhile, we also ensure that we keep all the infrastructure safe by ensuring that nobody gets injured. So we ensure that by continuously follow up from all the departments, like irrigation departments will see that there are proper burns, like municipal corporation department will see that all the main drains are clean so that there is no water inundation into houses or any kind of other structures. So this is how we manage. Definitely those are sleepless nights, but still we are well trained for it, so we keep doing it. So Vikas and I know each other from 7 to 8 months. You are so talented. You guys can read his bio on Instagram. You can see he's a pianist, author. He loves photography and much more. So how everything started in college? So this is a long-standing question people keep asking. So it never started as such. It was always I always wanted to do something other than just studies. So मैं पढ़ता था काफ़ी, वो बात है, लेकिन I have this philosophy that you should explore yourself, you should see the best of yourself. So the best of yourself in the way that not trying random things, but where you think that your heart wants to delve into. For example, I just felt that maybe I can explore more in the music world, and that's when I started playing harmonium in my class 8 9th only. So my father gifted me. Okay. Yeah, in class 8 9th I used to play harmonium, then my father gifted me one Casio. So then I started playing Casio, and after that I was not very good at it. I used to just play normally, like in school assemblies and all. After that, after going to college, I lost the touch. I lost the touch with instruments. After that, I went into to more of outdoor things like swimming, badminton, and all. But somehow I again started playing piano in my Labasana training. Then after that, there was no going back, and I'm now into grand pianos. So starting कभी ऐसा नहीं था. बस मेरा philosophy है कि I have to keep exploring the best of myself, and I found that this thing is one another thing that I can do better. As of now, I am sitting next to piano only.
एंड इसके अलावा ऑथर का तो ऐसा है कि आई लाइक राइटिंग, somehow it helps me to deal with the situations of not only my situation but also the situations of people. I see many people telling me about their stories, so I keep listening to those stories whenever I get some time. So my friends, the extended friends, so based on those stories I write things like what they must have felt, and sometimes I imagine things. So writing makes me feel slightly more human. I feel so because understanding other people's emotions and everything. So ऐसे लिखना स्टार्ट हुआ, और सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी तो मुझे काफ़ी पहले से ही पसंद था. कॉलेज टाइम में ऑल्सो आई यूज टू डू इट, बट आई हैव नेवर explored much in that arena. As of now I know basic things only. So yeah, this is how it is. So it never started, it was always on and off. I always try to do new things, that's it. 80% of the civil servants will write on civil services only. Like they will write Okay. about how to crack exam. मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लिख दिया, किसी और चीज़ पे, मतलब कुछ स्पेसिफिक तो यूपीएससी ओनली. पर मेरा वो सीन नहीं था. आई वाज मोर इनटू, सो उसका कोई रीज़न नहीं है स्पेसिफिक. पोएट्रीज, एंड अभी आई एम राइटिंग अ नोवेल ऑल्सो. सो इसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. जिससे सिविल सर्वेंट्स का ये है कि आप फील्ड में जाते हो, आप इतना काम करते हो, तो आपको एक्सपीरियंस होते हैं. फिर कितने लोग इस बात पे भी लिखते हैं कि फील्ड में मतलब हाउ टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन, ये और वो, दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन. सो एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा होते हैं, इतना डायनामिक होता है एक्सपीरियंस. तो फिर वो लिखने में मतलब ये कि दे रियली वांट पीपल टू नो द रियल, व्हाट यू टोल्ड अभी 2 मिनट्स पहले, कि द रियल फेस, द रियल थिंग. सो इसलिए लिखते हैं लोग बेसिकली, आई थिंक. अच्छा विकास, talking about college days, the decision that you have to give UPSC, how did you convince yourself? मतलब स्टार्टिंग से ही प्लान था या फिर माँ पापा का प्लान था? तो ये सब यूपीएससी फ्रेम में कैसे आया? देखो, यूपीएससी का मतलब ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक कभी बचपन से नहीं था. ऑनेस्टली बोलो तो मुझे मैंने कभी सुना भी नहीं था यूपीएससी का अंटिल माय 4th ईयर ऑफ कॉलेज, ऑनेस्टली. सो मैं तो मेरा मेन तो मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी. आई यूज्ड टू स्कोर वेरी वेल इन मैथ्स इन क्लास 9, 10, 11, 12. सो वाज माय मैथ्स वाज सो स्ट्रांग. तो मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया कि ठीक है, मतलब आई कैन गेट थ्रू इट. लकीली आई गॉट थ्रू इट इन फर्स्ट गो, एंड फिर आईआईटी कानपुर मिला. तो मेरे को उसी फील्ड में ज़्यादा करना था कि मैं इंजीनियरिंग बनना चाहता था. एक इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर, एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन कार्स. बेसिकली वो मेरा ड्रीम नहीं बोल सकते, पर वो मेरा एक प्लान था कि ओके मैं कार्स के ऊपर काम करूँगा, कार्स एक्सप्लोर करने हैं इन सब में. पर फिर 3rd ईयर के बाद मैंने फिर इसका मुझे पता चला कि ये भी एक एग्ज़ाम है. और मैंने यूट्यूब पे फिर इंटरव्यूज़ आते थे, उस समय स्टार्ट हुआ था. एक्चुअली उसके पहले यूट्यूब पे इतना नहीं था, ये सब चीज़ों का लिमिटेड था, लेकिन तभी वीडियोज़ आना स्टार्ट हुए थे बहुत सारे. तो मैंने फिर 2-3 वीडियोज़ देखे, और फिर मेरे को ऐसे पता चला कि इसमें मतलब यू कैन डू मच मोर फॉर द सोसाइटी, और ये बहुत डायनेमिक जॉब है. तो फिर ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में किसी एक फील्ड में गए तो उसमें भी मे बी हो सकता है डायनेमिक नेचर, बट स्टिल आपका 70-80% ऑफ द लाइफ वो एक वन काइंड ऑफ वर्क में जाता है. और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है अपने कोर वर्क से, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट. बट बहुत लोगों को वो मोनोटोनस ज़िंदगी पसंद नहीं आती है. तो मेरे माइंड में वही थॉट आया कि अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, और मतलब अगर मैं एग्ज़ाम ट्राई करने में कोई गलत बात नहीं है. एज़ आई टोल्ड अर्लियर कि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत सही लगता है. तो मैंने फिर सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, और फिर मैंने पुरस्कार में पढ़ा. फिर मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन भी हुआ कि इतना मेहनत करके आईआईटी में आए, और फिर अब यहाँ पे जॉब नहीं ले रहे हैं, और इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, लाइक इतने सारे लोगों में आपको 180-700 में आना है. सो पर माई पेरेंट्स सपोर्टेड. दे टोल्ड कि इफ़ यू आर फीलिंग कि एक बार देना चाहिए तो यू शुड गिव इट. सो फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया आफ्टर कंप्लीटिंग माई आईआईटी. और फिर 4th ईयर के एंड में फिर मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स देखे, तो मुझे बस यही था कि एटलीस्ट आई शुड नॉट हैव दैट रिग्रेट कि यार ट्राई करना चाहिए था कि मैं बन जाता शायद. तो वो रिग्रेट नहीं रखना था, इसलिए मतलब मैंने अपने आप को उस चीज़ में, लकीली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया. और फिर मैंने सारा दिल्ली में जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे हर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. ऐसा नहीं था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, हर चीज़ मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा था.
हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, ज्योग्राफी हुई. सो व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ preparing, so when you start enjoying that process, the process starts making your path easy. So अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आपका पाथ डिफिकल्टी होता जाता है. सो फिर मैंने एंजॉय करने का मतलब ये कि एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ आपको इतना पढ़ना है, आपको इतने डीप में जाना है, इतनी चीज़ों में आपको इस ऑप्शन को प्रिपेयर करना है, आपको ये टेस्ट सीरीज करनी है, आपको एवरी डे यू हैव टू बी ऑन द जॉब. आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, पर आप ऐसा नहीं है कि हाँ 1 महीना पढ़ा, 2 महीना नहीं पढ़ा, फिर 1 महीना, ऐसा नहीं है. तो वो सब चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट कर लो और फिर आप समझ लो कि हाँ ये ऐसा है, मुझे अगले 1 साल तक ऐसे करना है, तो वो चीज़ अगर आपके माइंड में बैठ गई फिर आप वो चीज़ कर लेते हो. तो ऐसे मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हुआ यूपीएससी की तरफ और ऐसे मैंने फिर क्रैक किया. अच्छा, because what was more difficult, clearing JEE, studying mechanical at IIT और clearing UPSC? देखो यार, सब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग टफ होती है, और वो भी सिंस यू आर फ्रॉम IIT कानपुर ओनली, सो यू नो वेरी वेल कि IIT कानपुर इज़ नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस एंड द वे इट ट्रेन्स यू, द वे इट टीचेस यू. सो वो बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं और काफ़ी डिटेल में जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, और ग्रेड्स भी बहुत मुश्किल से आते हैं. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट डेफिनेटली, पर देर इज़ आई विल नॉट से कि कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है. एवरीबडी नोज यूपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो यूपीएससी में मतलब आपको क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको लेकिन ब्रेक्स मिलते हैं ना. आप एक सेमेस्टर करते हो, फिर आपको 1-2 महीने का ब्रेक मिल रहा है, और सेमेस्टर के बीच में भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एज यू नो ये अपना अंतराग्नि हो गया, टकृति हो गया, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो अगर आप जैसे इतने वर्कलोड में भी आपको बीच में छोटे छोटे इवेंट्स मिलते हैं, तो it's not so difficult then. मतलब you get decent breaks to re-energize yourself, to come back again. So लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन में वो 1 साल मतलब आपका ऐसा सीन नहीं है कि आप मतलब कहीं 2 महीना पढ़ के 15 दिन कहीं निकल लिए, 15 दिन की छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं है. आपको डे एंड नाइट यू हैव टू बी ऑन दैट जॉब. सो वो माइंडसेट 1-1.5 साल तक रखना, पूरा प्रोसेस अगर आप देखो तो एग्ज़ाम का प्रोसेस इटसेल्फ इज़ ऑफ 9-10 मंथ्स. उसके अलावा 1 साल पहले प्रिपरेशन, तो ओवरऑल 2 साल का प्रोसेस है. सो वो 2 साल तक आपको एक माइंडसेट में रखना खुद को डिसिप्लिन वे में. सो आई डोंट थिंक इट्स अ ईजी टास्क. मतलब आप 1 हफ्ता भी अपन कभी, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे बहुत लोग डाइट स्टार्ट करते हैं पर वो 1-2 हफ्ते भी डाइट नहीं कर पाते सही से. सो आपको 2 साल तक किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना डे एंड नाइट, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए. तो इट वाज मोर डिफिकल्ट यूपीएससी. बिकॉज आपके लिए तो 2 साल का प्रोसेस था, पर काफी लोगों के लिए 6-7 साल का भी हो जाता है. सो व्हाट अबाउट देम? यस, तो वो उनको माइंडसेट रखना पड़ता है. तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मैं आई वाज लकी इनफ कि मेरे को एक लिमिटेड टाइम में सब कुछ क्लियर करने का मौका मिला. और उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए मैंने. मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पर जैसे मैंने फिक्स कर लिया था, मेरी चीज़ एक चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई थी कि ये मेरी कुछ लिमिटेड बुक्स है, करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ना है, और ये टेस्ट सीरीज़ मुझे ये इस 2 जगह से करनी है, और इसको ही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक कि मेरे को ऐसा फील ना हो कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंट हूँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए. तो और वो कोई लेवल नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 बार पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. कितने लोगों को 2 बार पढ़ने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, कितने लोगों को 15 बार पढ़ने में भी नहीं आता है. तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको लगे ना कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस चीज़ को मैं क्रैक कर सकता हूँ, फिर इस चीज़ का मतलब आई कैन गिव द एग्ज़ाम, उस पॉइंट तक आपको ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बोले कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये मेरे करंट अफेयर्स का सोर्स है, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ का सोर्स है, और ये मेरा ऑप्शनल का टोटल मटेरियल है. ये 4 चीज़ें अगर आपके माइंड में बैठ गई और आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो आप इसी को रिपीट करते गए, तो ऑटोमेटिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और जब कॉन्फिडेंस आता है तो ये एग्ज़ाम 50% कॉन्फिडेंस का ही है. प्रीलिम्स में शायद आपको इतना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत मतलब पड़े, पर लेकिन जब इतनी नहीं पड़ेगी जितनी इंटरव्यू में पड़ेगी. तो इंटरव्यू तक पहुँचने तक अगर आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हुआ, तो फिर आप वहाँ जब आप जाते हो, वहाँ बैठते हो, आपको बोलना होता है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रहे, एक खुद पे भरोसा रहे कि हाँ मतलब मैंने इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. तो वो बिल्ड तभी होता है जब आपने पढ़ा अच्छे से. आपने 50 बुक्स पढ़ डाली एक ही सब्जेक्ट पे, आपने इतनी टेस्ट सीरीज कर डाली, पर फिर भी अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. और एक बार जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है फिर बिल्डअप करने में इतना टाइम लग जाता है.
तो मेरा तो यही सजेशन है कि ऐसा नहीं है कि 6 साल 7 साल का प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफ़िकल्ट है, लोग करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, पर उनका अपना कुछ अपने पर्सनल रीजंस होंगे श्योरली। जैसे कहीं जॉब कर रहे होंगे या कुछ जस्ट थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। तो बस एक फैक्चुअल डिटेल है और कुछ ऐसा नहीं है इसमें। अच्छा विकास, थ्रू द प्रिपरेशन आप कभी डिमोटिवेट होते थे? लाइक आप सीधे दिल्ली चले गए थे कॉलेज से, लेकिन काफी फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, तो कभी ऐसा डिमोटिवेशन होता था? होता था यार काफ़ी तभी इसलिए सोशल मीडिया वगैरह सब क्विट कर दिया था उस समय। तो कुछ भी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करता था, क्योंकि आपको फिर आप देखते हो दोस्तों को, तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप उससे भटक जाओगे, पर थोड़ा सा आपका मन में हलचल उठेगी कि काश, क्योंकि ऐसा था कि मेरे को तो जिससे एज यू नो कि अपने आईआईटी में तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब इफ़ यू हैव स्कोर्ड डिसेंटली। तो अगर आपका सीजीपीए अच्छा वगैरह है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी जॉब। तो उसके बाद भी अगर आप कुछ चीज़ छोड़ के एक तैयारी के लिए आ रहे हो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस, सो आपको डीमोटिवेशन तो होगा, काफ़ी बार होगा। तो लेकिन जब भी मुझे होता था उस दिन मैं बस छोटा-सा ब्रेक ले लेता था। तो ऐसा नहीं कि हर 10 दिन में हो रहा है, तो वैसा नहीं था। 1, 2, 3 महीने में कभी एक बार ऐसा फ़ील हुआ कि अरे यार इतना डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे? तो उसमें आप छोटा-सा ब्रेक ले लो। छोटा-सा ब्रेक मतलब जैसे आप एक मूवी को चले जाओ, या फिर आप बाहर क्योंकि मेरे साथ मेरे कानपुर के 2-3 दोस्त भी आए थे साथ में, तो हम सब साथ ही तैयारी करते थे। तो जैसे कभी बाहर खाने चले गए, मूवी देख ली, बैठ लिए, थोड़ा बात कर ली, हँसी मज़ाक कर लिया। तो कभी से ज़्यादा फ़ील हुआ तो घर को चले गए 2 दिन के लिए। घर पे जाके आपको जो सुकून मिलता है, तो वो सुकून भी आपको वापस मोटिवेशन ले आता है। तो ऐसी चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर 10 दिन का ब्रेक लेके कहीं ट्रिप पे निकल गए, वो सब चीज़ें नहीं चलेगी। क्योंकि फिर तो आप उसको एक बार आप करने लगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे फिर से ट्रिप की ज़रूरत है, मुझे फिर से ट्रिप की ज़रूरत है। तो फिर वो ऐसे ही खिंच जाता है मामला। तो डिमोटिवेशन होता था मुझे, तो उस दिन मैं बस यही करता था। अगर बहुत लिमिटेड वे में हुआ है तो आई विल जस्ट गो फॉर अ मूवी और आई विल गो आउटसाइड एंड ईट। एंड इफ़ इट यूज्ड टू बी वेरी, जैसे एक बार हुआ था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं कि स्कोर्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से, ये वो। तो देन आई वेंट टू जयपुर, में घर चला गया, 2 दिन रुक कर आया, फिर वापस एनर्जी लेकर। अच्छा, तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट देयर इन दिल्ली? मतलब जैसे आप जेई में प्रिपेयर कर रहे थे, तो जेई जैसा जेई मोड था, और मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जेई एक रेट रेस होती है। फिर आफ्टर कॉलेज यू हैव योर ओन चॉइस कि हाँ यूपीएससी के लिए ऑप्ट करना है, तो वापस उसी मोड में जाना है। तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट देयर? दिल्ली में एनवायरनमेंट इज़ वेरी एनर्जेटिक। वही एक रीज़न है। जैसे आप एक एनर्जेटिक माहौल में रहते हो, एनर्जेटिक का मतलब ये कि एवरीबडी इज़ स्टडिंग डे एंड नाइट। सो आप क्लास में जाते हो, वहाँ देखते हो ठीक है आपके साथ और 100 बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और आपके अलावा और 20 बच्चे हैं जो आपके जैसे डाउट पूछ रहे हैं, आपके अलावा और 5 बच्चे हैं जो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के आप नहीं निकाल सकते, बाहर कहीं दूसरी जगह से नहीं निकाल सकते, पर जैसे देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक काइंड होती है जो दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो घर पे बैठ के भी, ऑनलाइन करके भी पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड काइंड वो होते हैं जिनको कंटिन्यूस पुश चाहिए होता है। वो पुश आता है लोगों को देखकर, आसपास के माहौल को देखकर। जैसे मान लो मैंने 10 घंटे पढ़ाई करके मैं आ गया, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ्लैट में मेरा जो रूममेट या मेरा पास वाला जो रूम में बंदा है वो 12 घंटे पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं भी 12 घंटे पढ़ूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रहेगी वो बात कि अरे यार वो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है। शायद मैंने 10 घंटे में उसके जितना ही पढ़ लिया हो, पर स्टिल तो मैं शायद आधा 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लूँगा, 10 की जगह 11 पढ़ लूँगा। तो वो थोड़ा जो पुश होता है ना, वो पुश आता रहता है इन सब चीज़ों से। तो दिल्ली में माहौल ऐसा ही है कि पुश करने वाला है आपको कि और करिए, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो वो माहौल जनरली बाकी जगह क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दिल्ली में ऑलरेडी है, तो सेम चीज़ कहीं और क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा माहौल रहता है बस एनर्जेटिक से। अच्छा विकास, आफ्टर क्लियरिंग यूपीएससी, ये वही चीज़ है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे? मतलब बेस्ट पार्ट तो सबको दिखता है बाहर से यूपीएससी का, तो व्हाट इज वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब? देयर इज़ नो वर्स्ट पार्ट यार, कोई वर्स्ट पार्ट नहीं है। इट्स टोटली, देखो वर्स्ट पार्ट नहीं बोल सकते आप, उसको ये बोल सकते हो कि चैलेंजिंग पार्ट क्या है। चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लोगों को लगता है कि फील्ड में आने के बाद काम नहीं रहता और ऐसा वैसा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूँ। सॉरी।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज हमारा मतलब 12-13 घंटे पर डे काम रहता है मिनिमम, ठीक है, एटलीस्ट फील्ड पोस्टिंग्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंट, कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे इतनी ज़्यादा कैटेगरीज है वर्क की। जैसे एज ए कमिश्नर मेरे को आई हैव टू टेक केयर ऑफ द रोड्स, ऑफ द पार्क्स, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ वाटर supply to the city, of property management, the tax collection and all. I have to take care of all the planning things of the establishments. So to ensure that your city runs properly on daily basis sanitation से लेकर सब चीज़ें, से सुबह आपको देखना है कि हाँ घर बाय घर व्हीकल जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खुद पर्सन जाके देख रहे हो, पर आपको अगर आपने एक भी दिन मॉनिटरिंग नहीं की तो कुछ ना कुछ कहीं कुछ लोगों में वो आ जाएगी, लेक्सिटी आ जाएगी कि नहीं यार सर तो देख नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा कभी होता नहीं कि हम देखते नहीं है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन ही, हमको ट्रेन ही इस तरह से किया गया है। हम लोग आए इस चीज़ के लिए कि यू विल वर्क फॉर द पीपल, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो कंटिन्यूस उस चीज़ को फॉलो अप करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसा नहीं है कि आप संडे को भी आपको देखना है कि हर घर में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, कचरा कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं पे कोई रेस्टोरेंट में फूड क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, सब ठीक है कि नहीं, लोग बीमार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं डेंगू तो नहीं फैल रहा है, मलेरिया तो नहीं हो रहा है। एवरीथिंग वी हैव टू इंश्योर। सो ये सब चीज़ें लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहती है। लोगों को सिर्फ वही जो आपने कहा कि वो पर्क्स एंड अलाउंसेस दिखते हैं, पर वो पर्क्स एंड अलाउंसेस नहीं होते हैं। वो बेसिकली ये होते हैं कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो पब्लिक सर्विस में कि आप इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट बस आपको इतना इंश्योर करती है कि हाँ आपको एक अकोमोडेशन दे रही है, कार दे रही है, क्योंकि आप पूरे दिन वो कार को लेके ही आप कहीं ना कहीं आपको जाना है, आपको कहीं इंस्पेक्शन पे जाना है, कहीं आपको चेक करना है कि किसी एरिया में ड्रेन ब्लॉक तो नहीं है, कहीं आपको चेक करना है कि रोड ख़राब तो नहीं है। तो आपको अकोमोडेशन दे रही है और आपको व्हीकल दे रही है। तो ये एक वो थिंकिंग बनाना कि ये पर्क्स एंड अलाउंसेस से, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली बस आपका एक सपोर्टिंग फैक्टर है, क्योंकि आप दिन रात काम कर रहे हो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको सपोर्ट दिया जा रहा है कि ठीक है, दिस विल टेक केयर, यू वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो या दैट्स इट। टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इवन द सीएम सर, ही इज सो यंग एंड वाइब्रेंट एंड यू रिसेंटली मीट हिम आल्सो एट सम ओपनिंग ऑफ सम पार्क, राइट? सो tell us about that experience where you have to deal with common people to ministers. So yeah, definitely being so we execute the programs of the government. So basically current government, they made this project of Dr. B.R. Ambedkar sir statue. It is the tallest statue of Dr. B.R. Ambedkar in the whole world, and Vijayawada में उसका inauguration था. So in that I was given a duty of म्यूजियम का जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे करना था। तो इट वेंट वेरी वेल, बट एज यू आस्क्ड कि कैसे एकदम कॉमन और मैन से लेकर ऊपर तक आप कैसे डील करते हो, सो आप सबको एक डिफरेंट वे में ट्रीट नहीं कर सकते। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली ओनली। पर जैसे ये होता है कि जैसे कॉमन मैन की कुछ ग्रीवेंस होती है, तो आपको मतलब वो ग्रीवेंस को समझना बहुत ज़रूरी है और उनकी तरह से सोचना ज़रूरी है। आपसे एक उम्मीद रहती है उनको, एंड आप बेसिकली पब्लिक सर्वेंट है, यू आर सर्विंग द पब्लिक। सो यू कांट बी लाइक कि you can't act like some boss, you have to act like a public servant only. So when they come to you have to listen to them and you have to understand from their perspective. आप ऐसे सोचो कि कल को आपके घर में कोई दिक्कत हो, कोई मान लो आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, और कोई आपके घर में मान लो पानी नहीं आ रहा है, या फिर कोई एंक्रोचमेंट इशू है, या फिर किसी ने वॉल एक्स्ट्रा बना दी है, आपका ड्रेनेज का इशू है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको उस तरह से सोचना है। आप ऐसे सोचोगे तभी आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि यार ठीक है ये तो क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो अगर फिर तो आपका एटीट्यूड अगर ऐसा रहा तो यू विल नॉट बी अ गुड पब्लिक सर्वेंट। सो ये उनसे डील करने में वी थिंक लाइक देम, और बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। और बाकी अलग अलग लेवल पे तो जैसे आर सीनियर्स, ऑल दी ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड ऑल, उन सब से तो प्रॉपर प्रोटोकॉल वे में ही बात होती है। प्रोटोकॉल इज डिफाइंड, सो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल विद देम, and you have to talk about the projects, the works that
they have launched and how well the execution is going on. So those things are like that only. Yeah. आपको याद है इंटरव्यू में क्या पूछा था यूपीएससी में? हाँ, yes, I remember. उन्होंने went for almost 28 minutes and they asked me some 25 questions. Basically, they asked me about Rajasthan and about social issues because my optional was sociology. तो social issues पे पूछा, राजस्थान के ऊपर पूछा, राजस्थान में थोड़ा फैक्चुअल डिटेल्स पूछे, रणथंभौर सेंचुरी के ऊपर पूछा और फिर एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आप मैन जैसे टाइगर वर्सेस मैन का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि टाइगर की पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो वो जो हमारे रहने के एरियाज है गाँव वगैरह उनमें आ जाते हैं तो गाँव को हटाना चाहिए या फिर क्या, उन सब पे डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने कोल एंड मतलब जैसे मेरा प्रोजेक्ट था आईआईटी कानपुर में ऑन फ्रेस्नेल लेंस के द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर करना और वाटर को हीट करना यूजिंग कॉपर वायर्स, कॉपर पाइप्स एंड ऑल। सो ये सब प्रोजेक्ट के ऊपर भी उन्होंने पूछा मुझे कि आप कल को आप कोल सेक्रेटरी बन गए तो कोल सेक्रेटरी बन के आप कोल को प्रमोट नहीं करेंगे क्या? तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे जहाँ पे यू विल हैव सम काइंड ऑफ डिलेमा। तो मैंने सारे आंसर बहुत बैलेंस्ड आंसर ही दिए थे क्योंकि आप एकदम से एक्सट्रीम नहीं हो सकते हो। इंटरमीडिएट नॉर्मल लाइफ में भी यू कांट बी एक्सट्रीम, यू हैव टू बी ऑलवेज बैलेंस्ड। सो इसके अलावा तो उन्होंने फिर मैं बुक्स के ऊपर पूछा कि कौन सी कोई बुक्स आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कौन सी बुक आपकी फेवरेट है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सिचुएशन दी उन्होंने मुझे कि अगर आपको कल को हम लोग कहीं का डीएम बनाते तो व्हाट विल बी योर टॉप प्रायोरिटीज़, आपसे क्या। तो मैंने यही बोला कि प्रायोरिटीज़ कभी पहले से फिक्स नहीं हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर आप एकदम सिटी में अगर आप कल को डीएम बनते हैं तो सिटी में आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होगी। आप कहीं ऐसे रूरल डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं तो प्रायोरिटीज़ बहुत अलग होगी। आप कहीं कोस्टल एरिया में डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं तो प्रायोरिटीज़ अलग होगी। तो मैंने वही बोला कि एरिया स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ सर उसी समय मैं डिसाइड करूँगा, पर डेफिनेटली एजुकेशन प्लस ऑल दी इश्यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी टॉप प्रायोरिटीज़ एनीवेयर, कहीं पर भी आप होंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यस, ऐसे ही सब था। अच्छा, आफ्टर इंटरव्यू यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा तो हो गया है? हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको उस समय इतना पता नहीं चलता, लेकिन आपके अंदर से जैसे आप जब जवाब दे रहे हो तो अंदर से आपको समझ आ जाता है कि आप क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर मुझे कहीं लगता है कि नहीं यार मैंने सही से नहीं बोला तो मुझे अभी ही पता चल जाएगा। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया तो मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा था कि मैंने कुछ गलत बोला है। तो इसलिए जब मैं बाहर आया तो मुझे बस वही बात थी कि मतलब मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली कि जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इसलिए मुझे फीलिंग थी कि इट वेंट वेरी वेल और अच्छा भी गया। 182 आए तो इट वॉज गुड इनफ कि अच्छा रहा सब कुछ। तो वो फीलिंग वही वाली बात है कि आपको समझ आ जाता है जब आप बोल रहे हो तो आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। अच्छा विकास, ऑन द एंडिंग नोट, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक सर्विस में, वो शुड ज्वाइन दी सर्विसेज एंड वो शुड नॉट? सो ये तो देखो ऐसा सवाल है कि मतलब शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ इस चीज़ का, पर फिर भी मेरा मानना यही है कि आपको ये बात तो समझनी होगी कि आप कहीं भी पोस्टेड हो सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो क्योंकि आपने चूज़ किया है तो इट इज़ अबाउट सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सो आप को कोई भी सर्विस मिल सकती है, आपको कोई भी सर्विस में कोई भी जगह पोस्टिंग मिल सकती है, पूरे इंडिया में कोई भी कैडर मिल सकता है। तो आपको हमेशा ये बात माइंड में रखनी है कि मैं इस चीज़ में आ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ कहीं पर भी काम करने के लिए और पब्लिक सर्विसेज के। इसमें आप आके आप चॉइसेस नहीं रख सकते। जैसे प्राइवेट जॉब्स में आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप चॉइसेस रखते हैं कि नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ स्विच करना चाहता हूँ, वहाँ पे जाना चाहता हूँ। इसमें आपको चॉइसेस नहीं मिलेगी। मतलब आपको जो तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज का कि हाँ यू आर वर्किंग फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल। तो ये माइंड सेट में लोगों को अगर जो देख रहे हैं वीडियो, जो सोच रहे हैं आने का, तो उनको ये चीज़ पहले से फिट होनी चाहिए माइंड में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ, वो बहुत लोगों का ये गलत एक मिथ है गलत सा कि भाई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। पर्सनल लाइफ रहती है लेकिन चैलेंजिंग रहती है। आपको इतना वक्त शायद ना मिले जितना आपको किसी और जॉब में मिलेगा। तो क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो वक्त कम मिलेगा खुद के लिए, पर जितना भी मिलेगा उसको आप अच्छे से जिए। और मैं क्या कहूँ इसमें कि
आपको अगर अच्छा जो भी वक्त मिल रहा है, जैसे कि जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं पियानो बजाता हूँ, कोई मूवी देखने निकल जाता हूँ या कुछ लिखता हूँ, तो या कहीं ट्रिप पे निकल जाता हूँ। तो जब भी वक्त मिलता है आप उस वक्त को यूटिलाइज़ करिए। उस वक्त में भी अगर आप एकदम नहीं बस यही सोच रहे कि अरे यार इतना काम है, तो ऐसे लाइफ नहीं चलती है। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तो ये 2 चीज़ अगर जिसने फिट कर लिए तो वो आ सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसका ऑप्शनल ये है, जिसका बैकग्राउंड ये है, वो नहीं आ सकता। एवरीबडी कैन क्रैक इट। जो सोच लिया वो कर सकता है इस चीज़ को। बस ये माइंडसेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये माइंडसेट नहीं होगा तो आप तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मेरा मतलब इसलिए मुझे ये बात बतानी थी। तो जिन लोगों को 2 चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है वो तैयारी करें, बाकी लोग नहीं करते तो बेटर है। अच्छा विकास, बिफोर लिविंग अगर आप मेरे लिए कोई पोएट्री रिसाइट कर सकते हैं तो फॉर आवर ऑडियंस। पोइट्री अभी तो ऐसे कोई याद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने सारी लिखी है तो ऐसे कोई स्पेसिफिकली भी याद नहीं आ रही है। पर मोस्टली पोइट्री जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं उस सिचुएशन पे लिखता हूँ। जैसे मैंने अभी कल परसों ही लिखी थी, एक पोएम लिखी थी कि आप इससे मतलब इज़ इट इनफ, या फिर आप इस चीज़ पे रुक। जैसे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि वी जस्ट कीप सेइंग कि अरे आप करिए और मोटिवेशन आ जाएगा, क्यों नहीं कर रहे आप, करिए इस चीज़ को। पर हम ये कभी नहीं समझते कि बहुत लोग वो कहते भी नहीं है खुद को कि मैं कर सकता हूँ। तो उस चीज़ पे लिखी थी, बहुत ही छोटी 3 लाइन है इस बात को समझने में कि आर यू इवन सेइंग इट टू योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। पीपल से अरे बोलने से कुछ नहीं होता, पर आप बोलिए कम से कम, क्योंकि बोलने से ही बहुत चीज़ें अपने आप वो मैनिफेस्टेशन होता है। आप खुद को बोलते हो कि मैं कर सकता हूँ तो वो चीज़ें हो जाती है। तो उसके ऊपर ये लिखा था कि आर यू रियली डन। तो समटाइम्स यू फील दैट नथिंग इज़ वर्किंग, यू आर सो हेल्पलेस, and but still you want to become something which turns out to be selfless. And then you think about it, you talk to people, and people will say you can't do it, and some people will say you can easily do it. And you ask those people, it's very easy to say. They say yeah, it's easier said than done. But are you saying to yourself even once? Because if you say to yourself, you will know are you really done. सो ऐसा कुछ लिखा था। कि आप खुद को कभी बोलो, आप बोल के देखो, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप बोलोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने बोला है तो मैं कर सकता हूँ। और अगर आप सिर्फ बोल ही रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो फिर देन इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, फिर आप कोई और चीज़ में मन लगाइए।